So we were discussing about the Shaira Bano versus Union of India 2017 Supreme Court judgment. That is a 5-judge bench decision. ठीक है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਦੀ ਅਲੱਗ, CJ ਖੇਹਰ ਔਰ S ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਔਰ ਜਸਟਿਸ UU ਲਲਿਤ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ RF ਨਾਰੀਮਾਨ ਦੀ ਅਲੱਗ. ਹਾਊਐਵਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ, ਜਸਟਿਸ RF ਨਾਰੀਮਾਨ ਔਰ ਜਸਟਿਸ UU ਲਲਿਤ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਹਦਾ? CJ ਖੇਹਰ ਦਾ ਔਰ ਜਸਟਿਸ S ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ. ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ. ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ that how the talaq is to be pronounced. Now you know the word talaq includes both the form of talaq, talaqul sunnat, talaqul biddat. लेकिन माइंड यू ट्रिपल तलाक यानी शायरा बानो वाली जजमेंट ओनली तलाक सुन्नत ट्रिपल तलाक पे बेस्ड है. सॉरी, तलाक के बिदत ट्रिपल तलाक पे बेस्ड है. दैट मीन्स 3 प्रोनाउंसमेंट्स इन वन गो. ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ. ਸਿੰਗਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਨਾਟ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅ ਮੁਸਲਿਮ. ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀ. CJ ਖੇਹਰ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ S ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਾਸਟ 1400 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਪਲੱਸ 90% ਆਫ ਹਨਾਫੀ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਅਨਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ. ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੰਬੇ ਵਰਸਿਸ ਨਰਾਸੂ ਅੱਪਾ 1951 ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ. ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈਲਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਕਿ ਈਵਨ ਇਫ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ, ਈਵਨ ਇਫ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. This was that means view taken by CJ Khehar and Justice S Abdul Nazir. और हाँ, plus they also refer to the laws of other countries as well. Other countries उन्होंने किहड़े laws देखे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, मोरक्को. ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਦ ਵਰਡ ਤਲਾਕ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆਫ ਸ਼ਾਰੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ. ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਕੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣਾ. ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਸ਼ਾਰੀਆ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਸ਼ਾਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ. ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਪੇਲ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਨ ਤੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਹਦਾ? ਜਸਟਿਸ RF Nariman and UU Lalit. Honorable Mr. Justice RF Nariman and Honorable Mr. Justice UU Lalit. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੰਬੇ ਵਰਸਸ ਨਰਾਸੂ ਆਪਾਂ ਮਲੀ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਗਰੀਡ. ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਓ ਕਿ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਵਰਡ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆਫ ਸ਼ਾਰੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ. ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ? ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ. ਤੇ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਵੇ ਆਊਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਾਅ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਦ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ.
तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 2 ऑफ 1937 एक्ट विच इज़ द शारिया एप्लीकेशन एक्ट ये रेगूलेट भी करता है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक में। हाउ? बिकॉज ये जेनेसिस सानू कित्थों मिलते पे है होली कुरान तो। इन्हां दे सारे जजिस का जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस केयर का और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर का ये कहना सी रेगूलेट नहीं करता पाया क्योंकि एक्ट कितने भी प्रोसेस नहीं दसदा पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जस्टिस आर एफ नारीमन एंड यू ललित का कहना सीगा क्यों नहीं दसदा पाया। जब उन्हें इन्नी गल ही कह दी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विल बी द गवर्निंग लॉ तो नैचुरली ऑल अदर डायमेंशनस विल आल्सो बी कवर्ड बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ विच इज़ होली कुरान। तो वही सानू दसेगा कि इन्हों 3 प्रोनाउंसमेंट से विच करना है, सिंगल टूर च करना है, कितना इद्दत पीरियड फॉलो करना है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ। दिस वॉज अ व्यू गिवन बाय जस्टिस आर एफ नारीमन एंड जस्टिस यू ललित। प्लस द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच दे हैव गिवन वो केड़ा सीगा? यस, उन्होंने कहा कि ठीक है मान लिया कि नरासू अपा वाली जजमेंट के असी प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक नू नहीं चैलेंज कर सकते क्यों? इट इज़ अ पर्सनल लॉ एंड पर्सनल लॉज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट असी 1937 एक्ट नू तो पकड़ ही सकते हैं। नाउ 1937 एक्ट इज़ वॉट? इट इज़ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपनी जी अथॉरिटी है, अपनी जी डिराइवेशन है वो कितों लेंदे हैगे ने? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इवन इफ इट इज़ वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स देन टू दैट एक्सटेंट दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ये कह सकते हैं 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2 ये एक्चुअली कहते हैं। तो उन्होंने की किया 1937 एक्ट द सेक्शन 2 है असी उन्होंने पकड़ते हैं वो वर्ड गिवन है तलाक। तलाक इंक्लूड्स तलाक को सुन्नत तलाक के बिद्दत। बिद्दत इंक्लूड सिंगल डिक्लेरेशन एंड ट्रिपल डिक्लेरेशन। हम तलाक के ये वाले पार्ट को ट्रिपल डिक्लेरेशन इस ग्राउंड पे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ना कि इस ग्राउंड पे हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या और वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस आर्बिट्रेरी है एंड एक्सेट्रा, विम्सिकल है, कैप्रीशियस है। उस ग्राउंड पे तो हम टच कर ही नहीं सकते बिकॉज इमीडिएटली नरासू अपा वाली जजमेंट वायलेट होती पई है। नाउ इवन टू दैट इज अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट बट उन्होंने की किया ऑन द जी वैलिडिटी देखी इस लॉ की ट्रिपल तलाक का सिर्फ तलाक वर्ड का ए वाला पोर्शन ओनली द ट्रिपल तलाक वाला पोर्शन आउट ऑफ द होल तलाक। नाउ दिस इंक्लूड्स अ हसन ऑल्सो इनू नहीं उन्होंने टच किया, ये उत्ते आयो डायरैक्टली कि असी ये पोर्शन असी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टक डाउन कर सकते हैं बीइंग वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज आर्टिकल 13(1) एंड 13 क्लॉज 2 सेज सो। वही कहते हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर वॉइड। So on this ground, this judgment has set aside the practice of triple talaq, that is talaqul biddat by 3 pronouncements. तुसी पूरी जजमेंट भी अगर निकाल के पढ़ोगे इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 350 पेजेस की जजमेंट है तो एवरीवेयर दे हैव रिटन द वर्ड ट्रिपल तलाक और ब्रैकेट च लिखा 3 प्रोनाउंसमेंट्स। सिंगल डिक्लेरेशन की वो गल करते ही नहीं पे, इट इज़ साइलेंट ऑन इट। नाउ अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव व्यू। इन्हों के व्यू नाल जस्टिस आर एफ नारीमन एंड जस्टिस यू ललित के व्यू के नाल कॉन्कर कौन करते पे ने? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कुरियन जोसफ। 2 जजेस आर जस्टिस नारीमन और जस्टिस ललित और कुरियन जोसफ द थर्ड जज। 3:2 एट 2 जजेस केड़े ने? जस्टिस केयर एंड जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। दैट इज़ वाई द मेजोरिटी ऑफ 3:2 की जजमेंट के नाल एक शायरा बानो वाली जजमेंट ने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस नू वॉइड एंड इलीगल डिक्लेयर किया है। लेकिन 1937 एक्ट का तलाक वर्ड का वो वाला पार्ट जो ट्रिपल तलाक को रिकोगनाइज एंड इनफोर्स करता पे आप कल रीड किया सी किमें करता पे ना दैट यू नो वेरी वेल उन्होंने रिकोगनाइज एंड इनफोर्स करता क्या ओनली दैट पार्ट इज डिक्लेयर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और केड़े फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 14, 21, 19 एंड 25 एज। और प्लस उन्होंने कुछ इस तो अलावा टेस्ट भी दिते हैं ने कि केड़े प्रैक्टिसेस नू असी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहांगे। प्लस उन्होंने दसिया मैनीफेस्ट आर्बिट्रेरी टेस्ट, मैनीफेस्टली आर्बिट्रेरी टेस्ट। जिहड़ा मैनीफेस्ट आर्बिट्रेरी टेस्ट है ना दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ।
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਰਬਿਟਰੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਬਿਟਰੀਨੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਆਰਬਿਟਰੀਨੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਟੱਚਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, मतलब इस जजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਾਉਂਡ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? This was all about the Shaira Bano versus Union of India. Now finally, after the Shaira Bano versus Union of India judgment, let me see कोई मैसेज तो नहीं आया। Now after the Shaira Bano versus Union of judgment, finally came 2019. It is called the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. 2017 शायरा बानो आई, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੈਟਲਡ ਲਾਅ ਔਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, जरा एक्ट निकालो ये वाला, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। पेज। किसी भी एक्ट ਨੂੰ स्टार्ट करन तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ देखते हैं, वो एक्ट ਬਣਿਆ क्यों सी, ऑब्जेक्ट की सी, ऑब्जेक्ट कितों पता लगेगा, परपस कितों पता लगेगा किसी भी एक्ट का, प्रीएम्बल तो। प्रीएम्बल की है, an act to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands। number 1 object A है, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto। और भी incidental matters को भी आंसर करना इस एक्ट का पर्पज है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस देखो इस एक्ट का बेस केड़ी जजमेंट सीगी, शायरा बानो। द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स and the other connected matters, ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 6 petitioners ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, on 22nd August 2017 in a majority judgment of 3:2 set aside the practice of talaq e biddat bracket 3 pronouncement of talaq at one and the same time। so that means what, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ, ट्रिपल तलाक practiced by certain Muslim husbands to divorce their wives। This judgment gave a boost to liberate Indian Muslim women from the age-old practice of capricious and whimsical method of divorce by some Muslim men having no room for reconciliation। Now you know, एक particular of time ते triple talaq बोलता, are there any chances of reconciliation? No। इसी ग्राउंड के उत्ते मिसिज शायरा बानो ने एक प्रैक्टिस चैलेंज की सीगी कि कोई है तो है नहीं रिकनसीलिएशन की प्रैक्टिस, और हसबैंड आर्बिट्रेरीली विमसिकली अपनी मनमर्जी के उत्ते डिवोर्स प्रोनाउंस कर रहा है, which is a wrong practice। The petitioner in the above said case challenged, petitioner कौन है, शायरा बानो, inter alia talaq challenged inter alia talaq biddat on the said practice is discriminatory and against the dignity of women। The judgment vindicated the position taken by the government that talaq biddat is against constitutional morality, dignity of women and principles of gender equality। yes, as also against gender equity guaranteed under the constitution। all these are dimensions of article 14 and 21। dignity 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, equality ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ article 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। the all India Muslim Personal Law Board AIMPLB ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, which was the 7th respondent in the above case, in their affidavit contended that it was not for the judiciary to decide the matters of religious practice such as talaq biddat, इन्होंने एक कंटेंशन ली, but for the legislature to make any law on the same। they had also submitted in the Supreme Court that they would issue adversaries to the members of the community against this practice। उन्होंने की किया कि असी मुस्लिम कम्यूनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ एक टाइप ऑफ क्रांति लेके आ जाएंगे कि जुडिशरी हु इज जुडिशरी टू चैलेंज दिस प्रैक्टिस, वो कौन होंगी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर करने वाली। अगे देखो, इन स्पाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेटिंग असाइड तलाक बिद्दत, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करता तलाक बिद्दत, एंड द अश्योरेंस ऑफ AIMPLB देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ डिवोर्स बाय वे ऑफ तलाक बिद्दत फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्टिल प्रेवलेंट सीगा उस टाइम पे 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। इट इज सीन दैट सेटिंग असाइड तलाक बिद्दत by the Supreme Court has not worked as any deterrent in bringing down the number of divorces by this practice among certain Muslims। कोई deterrent effect नहीं लेके जजमेंट।
ठीक है डिक्लेयर तो तुसी करता, परपस किसी डिक्लेयर करन दा कि ना करे हस्बैंड, डेटरेंट इफेक्ट दवे। डेटरेंस किवें आएगा, विच इज सपोर्टेड बाय सम बैक्ड बाय लॉ। डेटरेंस तो उदों ही आएगी ना जो कोई पनिशमेंट होगी, डरावा थ्रैट, कि अगर मैं किया तो मेरे मन च एक फीयर उत्पन्न होएगा, एक फीयर क्रिएट होएगा। वो किवें हो सकता है, पनिशमेंट पार्ट देख अगे देखो। It is therefore felt that there is a need for state action to give effect to the order of Supreme Court and to redress the grievances of the victims of illegal divorce। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। Therefore, to protect the rights of married Muslim women who are being divorced by triple talaq, a bill, namely the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2017, was introduced and passed by Lok Sabha on 27 December 2017 and was pending in Rajya Sabha. The aforesaid bill proposed to declare the practice of triple talaq as void and illegal. एक ही करता है बिल, अभी क्या कह रहा है, उसका स्टेटस क्या होगा ट्रिपल तलाक का, void and illegal, and made it an offence punishable with imprisonment up to 3 years and fine। सजा भी सुनाती and triable by judicial magistrate of first class, authority भी decide करती। It was also proposed to provide subsistence allowance to the married Muslim women and dependent children and also for the custody of minor children। ये सारी गल्लां भी बिल जो है बनांदा सीगा। आफ्टर ऑल बाद चो जाके ये एक्ट बन गया जो राज्य सभा ने भी पास करता और प्रेसिडेंट साहब की असेंट भी मिल गई। सो अगे उन्होंने सारे प्रोविजनस लिखे हुए हैं बिल के। ये रीड करने की बजाय मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आई रिकमेंड कि तुसी स्टार्ट विद सैक्शन 1। आप सैक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। पहला असी एक्ट पढ़ते हैं, देखो करना क्या चाह रहा है बेसिकली एक्ट। इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। It shall be deemed to have come into force on 19 day of September 2018, यानी 19/9/2018 ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਡੇਟ, ਇਸ ਦਿਨ फोर्स ਚ ਆਇਆ 19/9/2018। Definitions देखो, electronic form shall have the same meaning as assigned to it in the clause R of subsection 1 of section 2 of Information Technology Act 2000। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ given ਹੈ, ਅਸੀਂ reference ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। Magistrate means a judicial magistrate of first class exercising jurisdiction under Code of Criminal Procedure in the area where the married Muslim woman resides। Underline this part। ਕਿਹੜੇ मैजिस्ट्रेट की jurisdiction होएगी जिथे डिवोर्स मुस्लिम वुमेन रिसाइड करती पई है, ना कि जिथे हस्बैंड रिसाइड कर रहे। तलाक देखो, तलाक किहड़े तलाक की गल करदा पे 2C। तलाक मीन्स तलाक बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक having the effect of instantaneous and irrevocable divorce pronounced by the Muslim husband। means what? उन्होंने कहा तलाक ए बिद्दत, लेकिन अभी हमने पढ़ी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रीजंस। उन्होंने तलाक ए बिद्दत ब्रैकेट च की लिखा है 3 प्रोनाउंसमेंट्स। सो ये तलाक ए बिद्दत का मतलब तुसी की समझना है तलाक 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 ट्रिपल तलाक और any other similar form of talaq having the effect of instantaneous and irrevocable divorce pronounced by the Muslim woman। ए केड़ा हस्बैंड, ए केड़े तलाक की गल करता है, ट्रिपल तलाक तो ये कवर हो गया। ये और लिखा है ना आगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये और लिखा है ना आगे, और any other similar form of talaq having the effect of instantaneous and irrevocable divorce pronounced by Muslim husband। ये केड़ा हो सकता है, कोई होर फॉर्म ऑफ डिवोर्स जेड़ा मुस्लिम हस्बैंड प्रोनाउंस करता है जिसका इफेक्ट की होएगा उसे टाइम इंस्टेंटली मैरिज एंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ये केड़ा हो सकता है, तलाक बिद्दत बाय सिंगल डिक्लेरेशन। ये ओ वाला तलाक है, क्योंकि सिंगल डिक्लेरेशन दे विच की होंदा है, आई तलाक यू इररेवोकेबली या आई तलाक यू बैन। तेरा भी मतलब की होया, इवन तो तलाक 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 3 बारी नहीं कह रहा, 1 टाइम कह रहा, लेकिन वर्ड केड़ा यूज करता पे इररेवोकेबली और बैन। ते इस प्रोनाउंसमेंट का भी इफेक्ट की होगा, मैरिज देयर एंड देन इंस्टेंटेनियसली डिसॉल्व हो जाएगी। अभी साइलेंट है, मीन्स नो, ये एक्ट उसको भी कवर कर रहा है, सिंगल डिक्लेरेशन को। फॉलो कर रहे हो, इसमें आ सकता है ये, क्योंकि
डेफिनेशन पढ़ो ना क्या लिखा है, और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड इररेवोकेबल डिवोर्स। ये इररेवोकेबल भी है सिंगल डिक्लेरेशन, और इंस्टेंटली डिसॉल्व भी कर देता है मैरिज। तो क्या इसमें डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हैं। सो इट इज आंसरिंग बोथ टाइप ऑफ तलाक्स इन तलाकुल बिद्दत। फॉलो करके गल मुस्लिम हस्बैंड ही प्रोनाउंस करते हैं। चैप्टर 2 डिक्लेरेशन ऑफ तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। स्टेटस देखो की है तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। Any pronouncement of talaq by a Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void and illegal. This is a declaratory provision. ये डिक्लेयर कर दी पई, इफेक्ट दसती पई, क्लियर कट उन्होंने एक डिक्लेरेशन दे दी बस। स्टेटस हाँ यस, क्योंकि तलाक वर्ड यूज किया ना, एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इटैलिक्स में लिखा है। अब तलाक की डेफिनेशन आप कहाँ से उठाओगे? 2C से, और 2C में तलाक की डेफिनेशन क्या है? दोनों टाइप्स ऑफ ट्रिपल तलाक एज वेल और सिंगल डिक्लेरेशन आल्सो। फॉलो कर गए हो? एक डिक्लेरेशन देता पे, इट इज अ डिक्लेरेटरी क्लॉज। सेक्शन 4 पनिशमेंट की है हम प्रोनाउंसिंग तलाक। एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंसेस तलाक रेफर्ड टू इन सेक्शन 3 अपॉन हिज वाइफ shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine and shall also be liable to fine है। यानी मैक्सिमम सजा कितनी होएगी? 3 years। मैक्सिमम इट विल बी 3 years। मैजिस्ट्रेट साहब चाहता 1 साल भी दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, 1 week भी दे सकते हैं, 1 hour भी दे सकते हैं, 1 day भी दे सकते हैं। मैक्सिमम है 3 years which may extend to 3 years। कोई भी हो सकती है। मैक्सिमम सजा कितनी है? 3 years। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। एंड का मतलब की है प्लस फाइन, मैंडेटरी है, दोनों मिलोगे, पनिशमेंट भी होएगी प्लस फाइन भी होएगा। फाइन की कोई अमाउंट देती हुई है? नो। तो फिर की क्राइटेरिया से फॉलो करते हैं? कितनी? 10 करोड़ दे दे। द अमाउंट ऑफ फाइन शुड नॉट बी एक्सेसिव। ए द क्राइटेरिया CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है। where the amount has not been specified, the fine amount should not be excessive but must be reasonable। ये बड़े सारे फैक्टर्स से डिपेंड करता है नेचुरली। ये जब हम CRPC पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे देखो तो एक ही करता पे, एक पनिशमेंट देता पे। दैट मीन्स सेक्शन 4 इज अ क्रिमिनलाइजिंग प्रोविजन। एक क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। क्रिमिनलाइज करना मीनस व्हाट? पनिशमेंट देना। पनिशमेंट देने का काम की होता है? डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट करना। हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? द मोमेंट हस्बैंड की करेगा तलाक प्रोनाउंस करेगा तो डेटरेंस क्रिएट होएगी ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कि नहीं मैंने सजा हैगी मैक्सिमम 3 साल ਦੀ मिल सकती है, प्लस फाइन भी मिल सकता है। सो इट इज अ क्रिमिनलाइजिंग प्रोविजन। चैप्टर 3 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वूमेन। ये हुण जिस नाम के उत्ते एक्ट बने वो वाली प्रोविजनस है। ਕਿਹੜੀ प्रोटेक्शन मिलूगी मुस्लिम वूमेन ਨੂੰ? सेक्शन 5 सबसिस्टेंस अलाउंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस? ਇੱਥੇ मेंटेनेंस वर्ड क्यों नहीं यूज किया? सबसिस्टेंस अलाउंस एक वर्ड यूज क्यों किया? देखो मेंटेनेंस ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है ना, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ बोथ द पार्टीज। स्पैशली वाइफ है ना ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ सबसिस्टेंस अलाउंस की ਹੁੰਦਾ? सबसिस्टेंस मीनस व्हाट? सर्वाइवल ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾउंस ਦੇਣਾ। फूड क्लोथिंग शेल्टर ਜਿਹੜੀ बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड्स है ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ और सबसिस्टेंस को लिखा होया। Maintenance is always given with respect to taking into consideration the lifestyle enjoyed by the wife in the house of the husband in her matrimonial home. लेकिन subsistence is something different. It means only the surviving needs, basic minimum amenities which will be provided to the wife. ठीक है, करिए रीड। Without prejudice to the generality of provisions contained in any other law for the time being in force। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है? Prejudice मतलब इफेक्ट करना, हर्ट करना।
विदाउट अफेक्टिंग टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी किसी अदर लॉ दे विच जनरली जो प्रोविजंस दित्तियां होईयां ने उन्हां नूं असीं नहीं छेड़ना विदाउट प्रेजुडाइस टू दैम। सो इट इज स्टार्टिंग विद विदाउट प्रेजुडाइस क्लॉज। ਜਿਹੜੀ जनरल लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोविजंस है वो तो एज इट इज ਚੱਲ ਗਈਆਂ किस टॉपिक ਦੇ ਉੱਤੇ, किस मैटर ਦੇ ਉੱਤੇ, सबसिस्टेंस अलाउंस ਦੇ मैटर ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ विदाउट हर्टिंग दैम, विदाउट अफेक्टिंग दैम। ठीक है, आगे देखो, अ मैरिड मुस्लिम वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू, देखो वर्ड यूज किया है अ मैरिड मुस्लिम वुमेन, डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन ने वर्ड यूज किया। देखते पे इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर की है कि दैट मीन्स कि, चलो अगे मैं तुहानू दसदा, अ मैरिड मुस्लिम वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ हर माइनर चिल्ड्रन इन द इवेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय हर हस्बैंड इन सच मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट केड़े कंसीडरेशंस लैंदा है इन डिसाइडिंग द कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन? यस, पैरामाउंट कंसीडरेशन इज वेरी गुड, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। वो किदे कोल दिंदा पे कस्टडी? मदर दे कोल। मान लो मदर दे कोल वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड होंदा ही नहीं पिया, दैन व्हाट? फादर तो पनिशमेंट उसको, मतलब ये तो आगे ऑफेंस बना दिया इसको, वो तो जेल में होएगा भी क्योंकि उसने ऑफेंस कमिट किया। हाँ जी, द प्रोविजन इज साइलेंट। चलो आगे, पहले क्वेश्चन है मैं ओपन छोड़ दूँ। सेक्शन 7 प्लीज। ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एक्सेट्रा, द वर्ड यूज्ड इज ऑफेंस। ऑफेंस क्यों? जनरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंस? क्राइम इज अ वर्ड यूज्ड इन इंग्लिश लॉ, सेम मीनिंग इन इंडियन लॉ ऑफेंस आप कहने हैं। व्हाट इज ऑफेंस? आईपीसी पढ़ी? क्या होते हैं ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स? एक्ट सीरियस एंड मैन सीरिया, पढ़िया कि नहीं? फिर ये तो बेसिक गल्लां हैं, हुण ये गल्लां भी भूल जाओगे तो गल नहीं बननी ना। तो ऑफेंस किन्नू बना रहे हैं? हाँ, क्या है एक्ट सीरियस? क्या है वो? तो मैन सीरिया हो गया। अब मैन सीरिया वो इसमें इम्प्लिसिट मान रहे हैं। इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाइड है कि हस्बैंड ने विद इंटेंशन ही उन्होंने ट्रिपल तलाक दिता। एक्ट सीरियस की है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट सीरियस? दोनों को मिलकर ही तो ऑफेंस बनता है। व्हाट इज एक्ट सीरियस? एनीथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज एन ऑफेंस। यस, वेरी गुड। तो एक्ट सीरियस क्या होता है? स्टिल माय क्वेश्चन इज देयर। ठीक कह रहे हो, एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड एक्ट सीरियस, एंड कपल्ड विद एक्ट सीरियस देयर इज अ मैंजरिया। वो दोनों मिलके की बनाते हैं? ऑफेंस बनाते हैं। हुण प्रोहिबिटेड बाय लॉ किहड़ा एक्ट हैगा? इस एक्ट दे विच दसो, इस कानून दे विच दसो विच एक्ट, ACT एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। दिस 2019 एक्ट इज अ लॉ। यस, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक इज एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड। किवें प्रोहिबिटेड है? क्योंकि वो पनिशेबल है। द मोमेंट उन्हें एक्ट सीरियस कंप्लीट किया, उसकी लायबिलिटी बन गई, वो ऑफेंस कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये आईपीसी च आपां गल्लां डिस्कस करांगे। वैसे देखो, ऑफेंस किसनों बना रहे हैं? ऑफेंस द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक नूं बनांदे पए ऑफेंस। क्यों? बिकॉज दैट इज व्हाट इज मेड पनिशेबल बाय दिस एक्ट। एक्ट सीरियस हमेशा कोई भी फिजिकल एक्ट होंदा है, और फिजिकल एक्ट यानी कि वो बोलता पे फिजिकली ही इज कम्युनिकेटिंग। ट्रिपल तलाक को बोल रहे हैं, लिखा है ना, आइदर इन ओरल, स्पोकन और इन राइटिंग और इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो दिस एक्ट, द कंडक्ट दैट ही इज डूइंग, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड दैट इज कॉल्ड द एक्ट सीरियस। कपल्ड विद मेंजरिया, ये बन जाएगी कंप्लीट ऑफेंस। तो ये ऑफेंस किस टाइप का ऑफेंस है? कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, एक्सेट्रा। कॉग्निजेबल का मतलब की होंगे? कॉग्निजेबल का मतलब होता है जनरली द पुल। चलो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल? बच्चों तो पूछना पड़ना थोड़ा। प्राची मैम दसो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल? CRPC पढ़ी तुसी? अच्छा,
कॉग्निजेबल जनरली मतलब होता है इन विच द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। मैजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। कंपाउंडेबल का मतलब की है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेबल? थेफ्ट कहाँ से आ गया इसमें? वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। हाँ, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, अगर मान लो पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की होता है, पुलिस जाती है मैजिस्ट्रेट के कोल, मैजिस्ट्रेट को कहती है कि दैट वी वांट टू अरेस्ट दिस परसन, मैजिस्ट्रेट उन्होंने वारंट इशू करके देता है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि पुलिस को मैजिस्ट्रेट को जाना पै रहा है, परमिशन लेनी पै रही है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस की होता है द मैजिस्ट्रेट के कोल पुलिस को जाने की जरूरत नहीं होती, पुलिस इमीडिएटली अगर उसके सामने ऑफेंस होता पे कॉग्निजेबल नेचर का, वो अरेस्ट कर सकती है। हुण किहड़े ऑफेंसिस कॉग्निजेबल है, किहड़े ऑफेंसिस कॉग्निजेबल नहीं है, ये किहदे विच गिवन है? इट इज़ गिवन इन शेड्यूल 1 ऑफ BNSS, जो कि पहला CRPC सी। उत्तों सानू पता लगता है, वो पूरे टेबल तो पता लगता है। शेड्यूल 1 इज बेसिकली अ टेबल, बड़ा बड़ा टेबल है, लंबा चौड़ा, IPC के सारे ऑफेंसिस वो लिखे है, ना लिखा भी हुआ है कॉग्निजेबल होएगा, नॉन कॉग्निजेबल होएगा, ट्रायबल बाय विच मैजिस्ट्रेट, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे कोर्ट्स का भी मैंशन मिलता है तुहानू शेड्यूल 1 ऑफ BNSS। वही देखिया प्राची मैडम ने पढ़िया है, चलो कोई गल नहीं। कंपाउंडेबल का मतलब होता है पार्टीज कैन एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज। मान लो सिंपल हर्ट का ऑफेंस सीगा, एक एग्जांपल दे रहा, सिंपल हर्ट सी, किसी ने ए पर्सन ने बी नू थप्पड़ मारता, दिस इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, क्योंकि छोटी नेचर का ऑफेंस है, तो ए और बी आपस में दे कैन एंटर इनटू अ कंप्रोमाइज। हुण कॉम्प्रोमाइज से आफ्टर इफेक्ट्स की होंगे है, क्या उन्हें फिर भी सज़ा मिलेगी, क्या फिर भी फाइन मिलेगा, क्योंकि ऑफेंस तो कमिट होया, जो ऑफेंस कमिट होया नेचुरली पनिशमेंट भी होएगी, बट वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये आफ्टर इफेक्ट्स वी विल डिस्कस इन CRPC क्लासेस। तो सिंपली कॉम्प्रोमाइज कंपाउंडेबल का मतलब है की करना, टू कॉम्प्रोमाइज, टू एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज। दिस हैज बीन गिवन इन सेक्शन 320 ऑफ CRPC। और भी पूरी लिस्ट बनी हुई है, टेबल बने कि फलाने फलाने ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल। फॉलो कर गए? चलो हुण ये की कह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का ऑफेंस, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक का ऑफेंस की है, कॉग्निजेबल भी है, कंपाउंडेबल भी है। मतलब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर भी सकती है, तो मान लो अरेस्ट कर लिया, ट्रायल चलिया, ट्रायल के दोनों पार्टीज ने रजामंदी करनी चाहिए, दे वांट टू एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज, वो भी हो सकता है। टाइटल तो ही कहता पे, पढ़िए अगे प्रोविजन, ऑपरेटिंग पार्ट की होंगे प्रोविजन का किसी, दैट इज द मेन प्रोविजन। जो टाइटल है ना, इट इज़ ओनली एन एड टू इंटरप्रिटेशन, है सिर्फ हेल्प करता है इंटरप्रेट करने वास्ते, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ऑपरेटिंग पार्ट ए वाला सारा होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC, वाओ, दे आर स्टार्टिंग विद अ नॉन ऑबस्टैंडिंग क्लॉज। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब की होंगे, ओवरराइडिंग, मतलब है क्लॉजेस A B C जिन्ने भी दिते हुए है, ये ओवरराइड करोगे CRPC ते, यही वो कहना चाह रहे हैं। क्लॉज A, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल इफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, SHO by the married Muslim woman upon whom the talaq is pronounced or any other person related to her by blood or marriage। कॉग्निजेबल कदों होएगा ऑफेंस, जदों SHO साहब नू इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। किदे वालों, कौन इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेंट कौन होएगा, दिस मैरिड मुस्लिम वूमन अपॉन होम द तलाक इज प्रोनाउंस्ड, जिहड़ी विक्टिम है, जिन्हों ओहदे हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक बोलिया, या होर कौन हो सकता है इन्फॉर्मेंट इस केस च, और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मान लो ओहदा मुंडा हो गया, और मैरिज।
बहन हो गई उसकी, उसका ब्रदर हो गया, कुछ भी, ठीक है। आगे देखो क्लॉज बी प्लीज। एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। हुण माइंड यू जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सैक्शन 320 ऑफ CRPC है, ਉਹਦੇ ਚ पूरी लिस्ट गिवन है कि किहड़े-किहड़े ऑफेंसिस कंपाउंडेबल होणगे, लेकिन किहदे इंस्टांस ते कंपाउंडेबल होणगे? नॉर्मली विक्टिम दे इंस्टांस ते हुंदे है जो हु इज द सफरर। ते ये कंपाउंडिंग कौन करा सकदा ट्रिपल तलाक दी? एट द इंस्टांस ऑफ मैरिड मुस्लिम वूमन अपॉन whom द तलाक इज प्रोनाउंस्ड विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। वेरी नेसेसरी। मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन चाहिए है। जे मैजिस्ट्रेट साहब ने करना मना करता तो फिर कंपाउंडिंग नहीं पॉसिबल। और कंपाउंडिंग जो कंपाउंडिंग होंगी है ना, दैट मीनस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट बनता है। इनू कहने आप कॉम्प्रोमाइज़ डीड कह लो, एग्रीमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। ये भी सारे टर्म्स लिखे जाते कि इन्होंने टर्म्स से असी एक कॉम्प्रोमाइज़ एंटर करते पे, क्योंकि दो पार्टीज है, जस्ट लाइक नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया है भी। तो आ लिख रहे हैं ना अगे गल, विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज ही मे डिटरमिन। ही कौन? मैजिस्ट्रेट डिटरमिन करेगा। ये सारी जी कंडीशंस लगाओगे, टर्म्स एंड कंडीशंस। इतने मैं 1 2 3 4 5 6 टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं, ये सारियां कौन? मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। फॉलो कर गए? अगे देखो सी, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस। अक्यूज्ड कौन है? मैरिड वुमेन अक्यूज्ड है, वो तो विक्टिम है। हस्बैंड अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड कौन होता है? हु इज एन अक्यूज्ड? अब इसमें कंप्लेनेंट ठीक है, मान लिया दिस वाइफ इज देयर, वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है, सीधा पुलिस को जावे, अपना लिखती दवे, वो कंप्लेंट होगी। इन्फॉर्मेशन दवे मूँह नाल बोल के, तो पुलिस की करेगी रिड्यूस टू अपनी हैंड राइटिंग के उन्होंने मुंशी होंगे थाने के कर लेंदे होंगे, ठीक है। अक्यूज्ड कौन होता है? हाँ, हस्बैंड तो है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अक्यूज्ड? वो तो उसने क्राइम कर दिया। द एक्ट दैट ही हैज डन, दैट इज अ ट्रिपल तलाक। व्हाट इज अक्यूज्ड? अक्यूज्ड होता है जिसके ऊपर एलिगेशन लगा, ऑन अपॉन whom द एक्यूजेशन हैज बीन मेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल्लां ने CRPC के परस्पेक्टिव तो। A person upon whom the accusation has been made is called an accused, जिदों ते एलिगेशन लगे है। फॉलो कर गए? और अच्छा मान लो यही अक्यूज्ड है, कल नूं ट्रायल होंदा, ट्रायल पूरा कंडक्ट होया, साल लग गया, 1.5 साल लग गया, लास्ट दे विच ये अक्यूज नूं कोर्ट फाउंड गिल्टी। यही अक्यूज्ड नूं व्हेन द कोर्ट फाउंड गिल्टी ਇਹਦਾ नाम बदल जाएगा। वो की हुंदा? प्राची मैम कैन यू टेल मी? सजा करती, फाउंड गिल्टी। अगर मान लो ट्रायल चला, ट्रायल के बाद इस अक्यूज्ड को कोर्ट ने फाउंड गिल्टी कर दिया, तो इस अक्यूज्ड का नेम क्या हो जाएगा? फिर लीगल नेम क्या होगा? लीगली हम इसको क्या आगे से वो करेंगे, बुलाएंगे या रेफर करेंगे? कन्विक्ट। कन्विक्ट हो गया। नाउ ही विल बी टर्म्ड एज कन्विक्ट। कन्विक्टेड मतलब उसको सजा हो गई, पास्ट टेंस है। कन्विक्ट ओदा स्टेटस है। हम फॉलो कर गए? नाउ आफ्टर द ट्रायल व्हेन ही इज फाउंड गिल्टी, गिल्टी कोर्ट कदों फाउंड करेगी जो दोनों पार्टी से एविडेंसेस आ जाएगी, उन्होंने उत्ते हियरिंग हो जाएगी, कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर लूगी, फिर कोर्ट उन्होंने सजा करती। अगर मान लो एक्विटल हो गया तो तो अक्यूज्ड का जो टैग है वो भी हट जाए। तो जे मान लो कन्विक्टेड हो गया, कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी, देन ही विल बी कॉल्ड अ कन्विक्ट। मिस्टर ए इज अ कन्विक्ट। फॉलोड? आगे चलिए। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस punishable under this act shall be released on bail, shall be released on bail। उन्होंने बेल नहीं मिलूगी unless, लेकिन कदों मिलूगी? unless means what? It is an exception to the rule। जनरल रूल की है, no person accused under this act shall be released on bail, this is the general rule। बेल नहीं मिलनी, लेकिन कदों बेल मिलेगी? एक्सेप्शन च लिखा हुआ है, unless the magistrate on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim woman upon whom the talaq is pronounced is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail to such person।
मीनस कदों बेल मिलेगी, नंबर 1 ਜਦੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਖੁਦ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗਾ, ਨੰਬਰ 2 ਮੈਰਿਡ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਏਗੀ that there are reasonable grounds for granting bail to such person। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੇ। वही जो वो कंडीशंस लगाते हैं कि he will not tamper the evidences, वो इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा और सारी डेट्स पे आना पड़ेगा उसको। आगे देखो सेक्शन 8, एनी गल समझ आई तुहानू बेल वाली। रिपील्स एंड सेविंग्स। The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Second Ordinance 2019 इस हेयर बाय रिपीट। ये ना इस एक्ट आने तो पहला जो बिल भी पूरी तरह पास नहीं होया सी ते प्रेजिडेंट ने ना 2 ऑर्डीनेंस बनाए सीगे क्योंकि जिहड़ी नीड सीगी इस एक्ट नूं आउण दी बड़ी जरूरी सीगी ते जदों हले सैशन च सीगा ही नहीं पार्लीमेंट दा राज्य सभा ते तां फिर की होया प्रेजिडेंट दे कोल लैजिस्लेटिव पावर होंदी है टू प्रोमलगेट द ऑर्डीनेंस ते वो ऑर्डीनेंस जिहड़ा सीगा पहला वो चलदा सी, इस एक्ट आने तो पहला हुण वो रिपील हो गई। अगे देखो, notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Second Ordinance 2019 shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this act। कि उस ऑर्डिनेंस दे विच जिहड़े भी एक्शनस होए सीगे वो मन्निया जाएगा कि वो इसे एक्ट दे विच ही होंदे पए। लिखिया ना दिस एक्ट, बस खत्म हो गया तुहाडा। हुण आने आप कुछ इशूज़ रेज करते हैं, इन्ना सिंपल तो है नहीं। सो बेसिस की सीगा इस एक्ट का, पहला तो मैंने ये दसो जेडे प्री दे क्वेश्चंस है पहला तो वो कवर करिए। बेसिस ऑफ 2019 एक्ट वाज व्हाट? द शायरा बानो जजमेंट। द शायरा बानो जजमेंट हुण उन्होंने की किया, सैक्शन नंबर जिहड़ा 3 है, सैक्शन 3 दे विचों की कहते पे ने द ट्रिपल तलाक इज वॉइड एंड इलीगल। जो वॉइड है दैट मीनस व्हाट? वॉइड एब इशू है, दैट मीनस ऐसा जो उन्हें कुछ दिता ही नहीं तलाक, तो दैट मीनस मैरिज उन्होंने दे विच स्टिल एग्जिस्ट करती पई है, सबसिस्ट करती पई है। तुसीं उन्होंने पनिश करते पे हो कि वो जेल जाए, पनिशमेंट होएगी, मान लो कन्विक्टेड भी होगा कि हाँ प्रूव हो गया कि इस बंदे ने ट्रिपल तलाक दिता सीगा और आफ्टर ऑल द एविडेंसेस और अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने तो बाद कोर्ट ने उन्होंने फाउंड कन्विक्टेड, कोर्ट ने उन्होंने जेल भेजता। नाउ टेल मी, हले तो मैरिज उन्होंने सबसिस्ट करती पई है, एक परसन हसबैंड है वो जेल चला गया, क्या मैरिज के विच सिमिलर सिचुएशंस रही हैं? क्या मैरिज उदा दी उदा रही? नो। हसबैंड है, ही वेंट टू जेल, वाइफ जिहड़ी वो कल्ली हैगी है, तो क्या दोनों के विच देखो किसी भी लॉ का पर्सनल लॉ का मेन परपस भी की है, ईवन कुरान भी की कहता है वी हैव टू सेव द मैरिज। तुसी एक हसबैंड नो भेजते पे हो कितने जेल दे विच, ते हाउ द मैरिज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विल बी सेव्ड, दिस इज द फर्स्ट इशू। फिर वो गल करते पे सबसिस्टेंस अलाउंस की, जो मैरिज एग्जिस्ट करती पई है तो उन्होंने सबसिस्टेंस अलाउंस की प्रोविजन रखने का मतलब ही कि अनबाउंडन ड्यूटी की उन्होंने सबसिस्टेंस देने की, हसबैंड दी है, वही तो मेंटेन करेगा, सबसिस्टेंस देगा, और वो जेल में, और वो जेल में तो सबसिस्टेंस अलाउंस भी किवें देवे, किवें कमावे? या तो जेल से रह सकते या नौकरी कर सकते, जेल च बैठ के किवें नौकरी करके उन्हें सबसिस्टेंस अलाउंस देगा? हु विल गिव हर सबसिस्टेंस अलाउंस? दैट इशू हैज नॉट बीन आंसर्ड बाय दिस एक्ट। बस उन्होंने इतना लिखता सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगी, दैट्स इट, without prejudice to the generality of other clause, but who will give her subsistence allowance? हुण एक परसन ऑलरेडी जेल दे विच है, वाइफ ओदी बाहर है, थिंग्स उन्हां दोनों दे विच आपस में सेम रहणगियां, तुसीं ओदी मैरिज नूं की करदे पए हो? एक मौकरी करदे पए हो मैरिज की। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज तो सेव्ड है हले भी, क्योंकि तलाक की वैल्यू की है, वॉइड है, तो मैरिज तो हले भी सबसिस्ट करती पई है। सो व्हाट इज द फन ऑफ मेकिंग दिस एक्ट? क्या शायरा बानो वाली जजमेंट का ये परपस सीगा? शायरा बानो वाली जजमेंट का सिर्फ और सिर्फ ये परपस सीगा, वो क्यों उन्होंने इनू वॉइड एंड इलीगल डिक्लेयर किया? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस सीगी, लेकिन तुसीं तो उन्होंने इस हद तक लै गए कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही डिसरप्ट करते पे हो। हाउ फार दिस इज अ गुड लॉ?
मैरिज उन्होंने डिसरप्ट ही होंदी पई है, ही इज गोइंग टू जेल। और प्लस उन्होंने बेल भी किवें मिलूगी एट द हियरिंग ऑफ द वाइफ, लिखा होया ना, प्लस कोर्ट इज सैटिस्फाइड विद द अदर रीजनस। तो दैट मीन्स एट द मर्सी ऑफ वाइफ तो डिपेंड हो गया। तुसी ये भी नहीं लिखते पे कि बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जे वाइफ ने कहता कि ठीक है मैं बेल इनू नहीं देनी हैगी, मेरी मर्जी है कि इनू बेल नहीं देनी हैगी, तो कोर्ट उन्होंने बेल भी नहीं देगा, क्योंकि हियरिंग ऑफ द वाइफ इज मस्ट। तो ही विल टोटली बी डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ द वाइफ। तो क्या मैरिज सर्वाइव करती पई है हसबैंड एंड वाइफ की? एक परसन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ? ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵੋਇਡ ਐਂਡ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਅਮਾਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? उस तलाक की वैल्यू जीरो हुई है, मैरिज की वैल्यू तो जीरो हुई नहीं ना। उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों बनाते पे हो? कॉग्निजेबल मीन्स व्हाट? पुलिस उन्होंने अरेस्ट करेगी विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, विदाउट एनी वारंट। अच्छा, फिर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की भी गल करते पे हैं। जदों मैरिज सबसिस्ट करती है तो कस्टडी का क्वेश्चन कितों आता पे? और कस्टडी देंदे भी किनू पे? ओनली एंड ओनली मदर को। लेट्स से मदर हले शी इज ऐसे सर्कमस्टांस है कि मदर खुद अपनी नहीं अर्न कर पा रही, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है ही नहीं मदर के कोल। पैरामाउंट कंसिडरेशन तो बच्चों का वेलफेयर देखना ना, वो तो है ही नहीं मदर के कोल। फिर कस्टडी की गल कितों आती है? मान लो फादर अच्छी तरह रखता पाया सी बच्चों को, मदर नहीं रखती पई सी, फिर भी तुसीं मदर को देंदे पे हो कस्टडी। वाई? ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਇਡ ਐਂਡ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਟੈਂਪਟਸ ਆਫ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੋ। ਈਵਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਹੈਵ ਮੇਡ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਪੀਪਲ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि लोगों के मनां दे विचों प्रैक्टिस हटाना। यू कैन से अ टैबू इज देयर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। सो हाउ फार दिस एक्ट इज वैलिड, जेन्युइन किवें हैगा एक्ट? टेल मी। किते भी रिकनसीलिएशन की गल नहीं करता पिया। ईवन दैट कि होली कुरान भी कहती है, मैं तुहानूं लिखवाई सी, हाँ, लांस नायक वर्सिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे विच 4 स्टैप्स दस्से सीगे, दैट इज़ अ करैक्ट लॉ ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक। तुसीं वो तो इनकॉर्पोरेट करते, दैट इज़ अ जजमेंट ऑफ 2016 आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। तुसीं वो तक नहीं की। कंपाउंडेबल तो करते पे हो, ठीक है, दोनों बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, लेकिन अटेम्प्ट्स ऑफ रिकनसिलिएशन वेयर, विच हैज बीन मैंडेटेड बाय द होली कुरान। और अच्छा, कॉग्निजेबल तो ठीक है तुसीं बनाता, दैट मीनस पुलिस उन्होंने अरेस्ट कर सकती है। द मूवमेंट पुलिस इज देयर, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होगी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के विच। क्या मैरिज के विच सारी गल्लां सिमिलर रही? क्योंकि पुलिस केस ही पै गया एक बंदे के उत्ते। एवरी परसन विल लुक फ्रॉम द आइज कि यस इस बंदे के उत्ते पुलिस इन्वॉल्व हैगी, पुलिस केस चलता पे। और एक परसन जेल के विच जा रहा है, उस तो बाद मान लो जेल के विचों बाहर आके वो काम करेगा, वाइफ को सबसिस्टेंस अलाउंस देगा, उस परसन को नौकरी पर रखेगा कौन? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जेल च रह के आया। दैट इज़ द बिगेस्ट डेफामेशन, सब तो वड्डी बेइज्जती है उसदे वास्ते। ठीक है, तुसीं सबसिस्टेंस अलाउंस को ठीक है मान्य करते पे हो, और आप ये भी कह दें कि चलो थोड़ा आगे जाके सोचिए कि हस्बैंड जो है आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जेल वर्क करेगा और वाइफ को मेनटेन करेगा, बट उन्होंने रखेगा कौन? नौकरी कौन देगा उस बेचारे को? और जो जेल के चला गया वो नौकरी ऑलरेडी गायब। फॉलो करते पे हो? तो सबसिस्टेंस अलाउंस इज ऑल्सो नीड्स टू बी क्वेश्चन, custody of minor also needs to be questioned, plus the sanctity of the marriage also needs to be questioned with respect to this act। एक केस आया सी समझ आ रहे हैं ड्रॉबैक्स की है इस एक्ट दे? एक केस आया सी दिस
नदीम खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज़ 2020 दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। पिटिशनर्स जी सी ना वूमेन सी, उन्हें की क्या सीगा कि ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस नू 2019 एक्ट ना सिर्फ वॉइड एंड इलीगल डिक्लेयर करता पे, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि तुसी हसबैंड नू इंप्रिजनमेंट दे विच क्यों पाते पे। वॉइड मीनस वॉट, स्टार्टिंग तो ही अमान्य है, वो कोई लीगल सेंटिटी नहीं हैगी। मैरिज इंस्टीट्यूशन तो स्टिल सेव्ड है, तुसी भेजदे क्यों पे उन्होंने जेल दे विच? एवं तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डिसरप्ट होंदा पे। क्रिमिनलाइज करने का मतलब की है, जो ट्रिपल तलाक की कोई वैलिडिटी नहीं हैगी, मैरिज के उत्ते वो इफेक्ट डायरैक्टली पैंदा पिया ना। हुण वाइफ है, उन्हें हसबैंड नाल ही तो कोहैबिट करना, लेकिन हसबैंड है जेल। पिटिशनर्स का ये एक क्लेम सीगा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह किया कि जिहड़ी लैजिस्लेचर हैगा ना, इट इज़ वैल विद इन इट्स राइट्स टू डू सो। लैजिस्लेचर कुछ भी कानून बना सकता है और लैजिस्लेचर के कोल ऐसा राइट हैगा कि वो इनू क्रिमिनलाइज करे और हसबैंड को इंप्रिजनमेंट देवे। तो पिटिशनर्स का जो स्कोप सीगा वो खत्म हो गया। दैट मीनस पिटिशनर्स की कंटेंशन खत्म कर दी दिल्ली हाई कोर्ट ने। पिटिशनर्स ये भी रिक्वेस्ट की सीगी कि जब तक ये पिटिशन ये केस डिसाइड नहीं होता पाया, एटलीस्ट तब तक तो तुसी हसबैंड को जेल ना भेजो। हुण तुहानूं पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो हसबैंड इमीडिएटली उत्थे जाएगा जेल के विच, कस्टडी के जाता है पुलिस रिमांड के विच। उन्होंने कहा तब तक तो तुसी ना भेजो, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने की क्या, नो, जो लैजिस्लेचर ने इनू ऐसा बना दिता तो असी ये कुछ नहीं कर सकते, वी आर बाउंड बाय द लॉ। दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन सी नदीम खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेरा पर्सनल ओपीनियन तो यह है कि ठीक है, इन्हें कितने ना कितने डेटरेंट इफेक्ट तो दिता 2019 एक्ट ने, लेकिन ये टेनेट्स ऑफ इस्लाम के नाल किते भी कंसोनेंस के विच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस्लाम की रिकमेंडेशन की है कि तलाक हमेशा रीजनेबल कॉज नाल होना चाहिए, प्लस रिकनसीलिएशन होनी चाहिए। इस एक्ट ने किते भी वो वाला परस्पैक्टिव डील ही नहीं किया। दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपीनियन दिस इज़ नॉट अ गुड लॉ। हिंदू लॉ के देखो, इन एवरी स्टेज यू विल फाइंड द अटेम्प्ट्स ऑफ रिकनसीलिएशन। उत्थे तो RCR की प्रोविजन भी है, तो मैं दसिया है सारा, सैक्शन 9 है, 10 है, 13A है, 14 है, 23 तो पूरे रिकनसीलिएशन की गल करते स्पैसीफिकली मैंडेटरी है नाले। तो ये एक्ट किवें बचाता पाया राइट्स ऑफ द मैरिड मुस्लिम वूमेन। कस्टडी की गल कितों है, जो मैरिज उन्होंने हले ही हैगी है और मदर को देंदे पे कस्टडी। सबसिस्टेंस अलाउंस कितों जाएगा? हसबैंड उत्ते ऑलरेडी जेल च है, उन्होंने नौकरी तो रखेगा कौन? दैट इज़ द बिगेस्ट डेफामेशन, सब तो बड़ी डेफामेशन है वो वास्ते। तो तुसी उन्होंने पनिश करके, क्रिमिनलाइज करके इनू पनिशमेंट देके हासिल की किया कि तुसी मैरिज के इंस्टीट्यूशन को प्रोटैक्ट किया? नो, मैरिज तो कंप्लीटली डिसरप्ट हो गई है। तो एक स्टैप, एक सैक्शन नहीं है गल करता पाया कि असीं मैरिज को सेव करनी है। फॉलो करते पे गल? कंपाउंडिंग भी कितने इंस्टांस से होएगी, वाइफ के इंस्टांस से होएगी, लेकिन रिकनसीलिएशन की गल कितने नहीं की गई। क्या वाइफ का एम ये सीगा कि हसबैंड को जेल भेजना है? नो, वाइफ का एम की सीगा? शायरा बानो ने जजमेंट की सी उन्हें चैलेंज किया सीगा वाइफ ने, हाँ, कि ये एक्ट इंस्टेंटली मैरिज को डिसोल्व कर सकता है। जो ट्रिपल तलाक है इंस्टेंटली मैरिज को खत्म करता है विदाउट एनी अटैम्प्ट ऑफ रिकनसीलिएशन। सिर्फ वह ये टेक सीगा वाइफ का। क्या उन्हें कितने भी डिमांड की सी कि हसबैंड को तुसी जेल भेजो, जिस नाल उस बेचारी का घर ही टुटदा पे। सो ऑन दिस ग्राउंड दिस एक्ट इज नॉट अ गुड लॉ। और देखना कोई पॉइंट्स रहने कि नहीं। ठीक है, एक पैराग्राफ लिख लो प्लीज, टेक वन पैराग्राफ। तुहानू समझ आए ड्रॉबैक सारे? प्राची मैम तुहानू समझ आए? ये सारी जिहड़ियां गल्लां ने, ऑल दीज पॉइंट्स हैव बीन टेकन बाय मी फ्रॉम दिस जजमेंट नदीम खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो लिखो जरा, इन द केस ऑफ नदीम खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही वाला केस है। इन द केस ऑफ नदीम खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यस 2020 दिल्ली हाई कोर्ट, आप लिखिया बोर्ड पे, आई मीन टीवी पे। द मेन क्वेश्चन इन कंसिडरेशन वॉज, द मेन क्वेश्चन इन कंसिडरेशन वॉज
once triple talaq has been rendered, once triple talaq has been rendered void and illegal, and there is no justification for, and there is no justification for criminalizing the pronouncement of talaq, criminalizing the pronouncement of talaq, since such triple talaq would have, since such triple talaq would have no legal effect, since such triple talaq would have no legal effect, no legal effect on the status of Muslim marriage, on the status of Muslim marriage, full stop. Court held that the purpose of section 4 appears to, the purpose of section 4 appears to 2019 एक्ट का आज असी सारा रीड किया हले, section 4 of 2019 act appears to discourage the age old and traditional practice of pronouncement of talaq, by Muslim husband upon his wife by resort to resort to talaq e biddat, by resort to talaq e biddat, full stop. The purpose of section 4 is to provide, the purpose of section 4 is to provide a deterrent effect, against such practice, deterrent effect against such practice, full stop. Para change. Merely because triple talaq has been declared to be, triple talaq has been declared to be void and illegal, it does not mean that the legislature could not have made the continuation of such practice an offense, have made the continuation of such practice an offense, full stop. थोड़े जे ना आ देखो हुण इहदे विच की क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने, वूमन ने की प्रे किया सीगा पिटिशनर ने कि जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक तो तुसीं हसबैंड नूं इंप्रिजनमेंट दे विच ना भेजो, जेल दे विच ना भेजो। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑन द अदर हैंड ये होल्ड किया कि नहीं, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाता, वी आर बाउंड बाय द लॉ, लेजिस्लेचर अप इज वेल विद इन इट्स कैपेसिटी कि कुछ भी लॉ बना सकता है, कुछ भी लॉ, और असी तो उन्होंने इंटरप्रेट करना ही है और वो अकॉर्डिंग असी फॉलो करना, वी आर बाउंड बाय द लॉ, असी इंस्टीट्यूट के बाउंड हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट का काम ही होंगे ना इंटरप्रेट करना लॉस को। एक होर केस लिखो, केस ऐदा लिख लो, केस इन विच दिस 2019 एक्ट हैज बीन चैलेंज्ड, ये हले ना पेंडिंग है, ये हले डिसाइड नहीं होया, हले भी सुप्रीम कोर्ट दे विच है,
तो इहदा प्लीज़ तुसीं ट्रैक रखना है और देखना है भी इहदा की हेल्डिंग होएगी, डिसीजन आएगा। केसेस इन विच 2019 एक्ट हैज़ बीन चैलेंज्ड। मैं स्क्रीन को दिखाता हूँ। केस का नाम लिखो, इट इज समस्त केरला जमियातल उलेमा। समस्त SAMASTH समस्त केरला जमियातल उलेमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2019 का उदों का हाले तक डिसाइड नहीं होया, हाले भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट दे विच। उदों इहदे विच जजिस सीगे NV रमन्ना, जमियाथल JAMIATHL जमियाथल उलेमा ULEMA। पतला करता पेन थोड़ा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜजेस ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ NV रमन्ना चीफ जस्टिस और अजय रस्तोगी जस्टिस। ये हाले भी पेंडिंग है, हाले भी डिसाइड नहीं होया। तुसी इहदा थोड़ा ट्रैक रखना है कि कितने तक केस पहुंचे। ये बेसिकली ना केस है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 2019 एक्ट। दिस इज अ केस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 2019 एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की गल करता है और ये 4 ग्राउंड्स के उत्ते चैलेंज होया सी कि क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट द मुस्लिम मैन। फर्स्ट एम करके लिख लो, इज इट डिस्क्रिमिनेटरी। इशूज ये जो फ्रेम हुए थे, डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम मैन। दैट मीन्स आर्टिकल 15 ਨੂੰ वायलेट करता है। आर्टिकल 15 की कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सैक्स। सेक्स के बेसिस के उत्ते डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी मेल्स को डिस्क्रिमिनेट करता पे। सैकेंड ग्राउंड के उत्ते चैलेंज होया सी कि इज दिस एक्ट मैनीफेस्टली आर्बिट्रेरी। मैनीफेस्टली आर्बिट्रेरी के टेस्ट ना शायरा बानो च लेट डाउन किए सीगे तो कोर्ट ने यही इशू बना लिया। तो क्या मैनीफेस्टली आर्बिट्रेरी है? और मैनीफेस्टली आर्बिट्रेरी यू नो आप कदों देखते हैं, किहड़े आर्टिकल के अंडर आता है मैनीफेस्टली आर्बिट्रेरीनेस का टेस्ट? अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ वही तो, क्या ये एक्ट मैनीफेस्टली आर्बिट्रेरी है? मतलब अपनी मर्जी नाल लेजिस्लेचर ने कुछ भी बनाता है कि इक्वालिटी को तो नहीं वायलेट करता पे, नेचुरली करता पे। ये सेकंड ग्राउंड सी, ऑन दिस इट वाज आल्सो चैलेंज। थर्ड ग्राउंड लिखो कि क्या डज द एक्ट प्रोवाइड एक्सेसिव एंड डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट फॉर मुस्लिम हस्बैंड। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा एंड डिसप्रमोशनेट पनिशमेंट फॉर मुस्लिम हस्बैंड। दसो क्या ज़्यादा पनिशमेंट देता पे और एवं देता पे डिसप्रपोर्शनेट एक्ट पनिशमेंट हस्बैंड। फोर्थ ग्राउंड ये चैलेंज होया सी कि इज द एक्ट नेसेसरी, क्या जरूरी भी है कि नहीं है। वैन ट्रिपल तलाक हैज़ बीन, अब मैं शॉर्ट च लिखा, तुम पूरा लिखना टी ट्रिपल तलाक है ना लिख देना। वैन ट्रिपल तलाक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज void and illegal in शायरा बानो। एक क्वेश्चन, void and illegal in शायरा बानो। सो ये 4 ग्राउंड से उत्ते ना इस पर्टिकुलर केस के विच चैलेंज होया है एक्ट पूरा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज हुई हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 2019 एक्ट। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रोग्रेसिव स्टेप। लिख लिया। एक टेक डाउन वन मोर केस, वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं है, वो एक इशू ਨੂੰ एड्रैस करता है। केस ऑन सेक्शन 7C। इट इज़ अ केस ऑन सेक्शन 7C ऑफ 2019 एक्ट। प्लीज टेक डाउन द नेम ऑफ केस।
इट इज यस रहना जलाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इट इज 2021 सुप्रीम कोर्ट और 3 जज बेंच डिसीजन है। रहना जलाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जरा खोलो सेक्शन 7 ऑफ एक्ट। करण है तो बेल एक्ट खोलो और पढ़ो। समझ आया एक्ट तो की है बेसिकली? सेक्शन 7 पढ़ो। offense to be cognizable, compoundable, etc. नहीं पहला पूरा पढ़ो। हाँ स्टार्टिंग तो नॉट विद स्टैंडिंग पढ़ो। Notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure उन सी ते आ जाओ। no person accused of an offense punishable under this act shall be released on bail unless the magistrate on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced is satisfied that there are reasonable grounds for granted bail to such person। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨॉट ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਨॉट ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਵਰਰਾਈਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਬੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਬੇਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀਆਰਪੀਸੀ 'ਚ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 438 ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੈ। 436, 437 and 439 in CRPC. I am talking about CRPC, not BNSS. A regular bail दी provisions है। Anticipatory bail दी केड़ी है? 437 438 ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? Notwithstanding anything contained in CRPC, no person accused ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। of an offense ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਤਾ। offense punishable under this act shall be released on bail, ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ unless the magistrate on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim woman upon whom the talaq is pronounced is satisfied that there are reasonable grounds for granting the bail। कोर्ट की considerations देखेगा। सब तो पहला तो हस्बैंड एप्लीकेशन लगावे बेल दी, दूजी गल वाइफ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, तीसरी गल रीजनेबल ग्राउंड्स देखने एक ਇਹਦੇ ਕਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। इफ these conditions are there then he will be granted bail। क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਵਾਸ ਕਿ क्या ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। मैं तो कह रहा बेल की गल करते पे है। बेल अगर मिलूगी भी तो केड़ी 3 कंडीशंस थे कि उन्हें एप्लीकेशन लगानी, वाइफ को सुनना और रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। एप्लीकेशन तो चलो छोड़ो, होता फॉर्मैलिटी वैसे लिखता हो तो लगानी पैनी है, बोल के थोड़ी बेल मिलती होंगी, एप्लीकेशन लगती है। तो मेनली की उन्हें करना है वाइफ को सुनना और रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए मैजिस्ट्रेट के कोल, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। क्वेश्चन इस केस रहना जलाल वाले केस इशू ये सीगा क्या हस्बैंड 438 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? इस एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਨੋਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਨੋਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ CRPC ਮੀਨਸ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ CRPC ਨੂੰ। ਕੌਣ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਿਸ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ। लेकिन क्लॉज सी ਜਿਹੜਾ ओवरराइड करता ਪਿਆ ਉਹ किस टॉपिक ਤੇ ओवरराइड करता ਪਿਆ? बेल वाले टॉपिक ਤੇ करता ਪਿਆ कि जो मर्जी लिखा होवे CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ क्लॉज सी विल प्रिवेल। और क्लॉज सी ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? बेल ਦੀ। बेल मीन्स ਕਿਹੜੀ? ਰੈਗੂਲਰ बेल। ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ बेल ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੀ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ बेल।
ले सकता है इसमें एंटीसिपेटरी बेल। और उन्होंने ये क्या सी कि जेड़ा नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज है, पहला इधर सुनो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, तो दैट मीन्स पूरी सीआरपीसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ओवरराइड करता पिया सैक्शन 7। सिर्फ कौन कौन से टॉपिक्स को ओवरराइड कर रहा है, एक तो जो कॉग्निजेबल वाली गल क्लॉज ए च, क्लॉज बी च की लिखा है कंपाउंडेबल वाली गल ओ च, और क्लॉज सी च की लिखा है बेल वाली गल। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टॉपिक्स से सीआरपीसी च जो लिखा हुआ है उन्होंने हटा के आपां ए पढ़ना, उन्होंने ओवरराइड करता पे सैक्शन 7। रहना जलाल वाले केस च ए हैंड होया सी कि even though the section 7 is starting with a notwithstanding clause, but notwithstanding clause is not overriding the whole of the CRPC. Rather than that, एक किन्नू override करूँगा only the topics covered under section 7. और topics केड़े covered under section 7? cognizable, compoundable और bail। और bail केड़ी? regular bail। किते भी prohibit तो नहीं करते पे anticipatory bail रह सकता है। और CRPC ने भी मैं तुहानू हुणे की समझाया कि सिर्फ और सिर्फ ओवरराइड किन्नू करेगा रेगुलर बेल वाली प्रोविजन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रेगुलर बेल सीआरपीसी ਚ जो मिलनी है ਉਹਦੇ ਚ क्राइटेरिया अलग है, लेकिन ਇਹਦੇ ਚ क्राइटेरिया ਇਹ वाले तीन ਜਿਹੜੇ लिखे हुए है कि हस्बैंड एप्लीकेशन देगा, वाइफ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰग ਹੋਏਗੀ, और थर्डली हस्बैंड ਦੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ सीआरपीसी ਵਾਲੀ रेगुलर बेल ਤੋਂ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ सीआरपीसी ਨੂੰ ओवरराइड नहीं करता ਪਿਆ। ਤੇ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ सीआरपीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ प्रोविजन एंटीसिपेटरी बेल ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ एंटीसिपेटरी बेल हस्बैंड क्लेम कर सकता है क्योंकि वो किते भी ओवरराइड नहीं होंदी पई। ओवरराइड की हो रहा है करन, तुहानू समझ आया? ओवरराइड किन्नू करता पिया? ओनली सीआरपीसी दे केड़े टॉपिक नू जेड़े दे विच लिखे हुए है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਿਆ? बेल ਦਾ। बेल मीनस रेगुलर बेल, दैट मीनस ਅਸੀਂ स्पैशल प्रोविजन ਇਹ फॉलो करांगे रादर दैन 436 437 वाली रेगुलर बेल ਦੀ प्रोविजन सीआरपीसी ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ फॉलो करांगे, ਅਸੀਂ ਇਹ फॉलो करांगे। सिर्फ ਇੱਥੇ ओवरराइड करता पिया। तो सीआरपीसी एक प्रोविजन एंटीसिपेटरी बेल दी भी है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ। ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ? ਦ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਐਂਡ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਆਫ ਦ ਵਾਈਫ, क्या उन्होंने भी लाइबिलिटी बन सकती है कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की बनोगी? अगर जो लड़की उसने एलिगेशन लगाया है तो बन सकती है। जस्ट अ सेकंड। नो, दिस एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल अपॉन द मुस्लिम वुमेन। और मुस्लिम वुमेन ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, हस्बैंड करता है ना। तो इस एक्ट जेड़ा हैगा ये वाला एक्ट है, ये हस्बैंड ਨੂੰ सिर्फ लाइबल करता पे, ਉਹਦੇ फादर एंड मदर ਨੂੰ लाइबल नहीं करता। फॉलोड? मतलब सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬੇਲਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਤੇ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ। लेकिन रेगुलर बेल गवर्न कित्थों होएगी? ਇਹ एक्ट ਚ, सीआरपीसी वाले ਚ नहीं लगेगा क्योंकि नॉट विद स्टैंडिंग लगा है। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब ओवरराइड ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ। सीआरपीसी ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ। ये क्यों सैक्शन 7 क्लॉज सी इतने क्यों है और सीआरपीसी नीचे क्यों है? एक वर्ड के कारण नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है ओवरराइड, कि इनू तवज्जो ज़्यादा देनी है रादर दैन सीआरपीसी। तो लिखा है ना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। तो बेल वाले मैटर्स से सीआरपीसी च वॉट एवर जो मर्जी लिखा होवे ਆਪਾਂ फॉलो किनू करना इस एक्ट के 7C ਨੂੰ। लेकिन हले तक ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होया, हले भी हस्बैंड ਨੂੰ सजा ਹੁੰਦੀ है। लेकिन ईवन तो ये ड्रॉबैक्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਹੈ कि मैरिज ਨੂੰ ਇਹ सेव नहीं किते करता पिया, लेकिन फिर भी हस्बैंड ਨੂੰ सेव सजा ਹੁੰਦੀ है। ਇਹਦੀ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इस समस्ता वाले केस से केरला वाले केस से गई हुई है, हले डिसाइड नहीं होया। होना तो चाहिए, बाकी लेट्स वेट। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਸਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। आर्टिकल 14 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ
ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਡੇਟ ਤੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਥਿੰਗਸ। ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਸ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਨ ਦ ਮਰਸੀ ਆਫ ਦ ਵਾਈਫ। ਸਰ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਚਲਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਅ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦ ਲਾਅ, ਆਰਟੀਕਲ 14। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਵੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐਕਟ? ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ? ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੋਂ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਸਮਝ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਅਲਾਉੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਊਗਾ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨੇ ਬੀਆਰ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਛੜੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਵੈਸੇ ਹਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਆ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਲਤੀਫੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ? ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ, 1986 ਐਕਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਲਾਅਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਅ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੋਇਡ ਜਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੋਇਡ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੋਇਡ ਐਂਡ ਇਲੀਗਲ ਜਦ ਕਹਿਤਾ। ਇਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਵਾਟ? ਅਨਲॉफुल ਹੈ ਬਸ। ਵੋਇਡ ਮੀਨਸ ਸ਼ੂन्य ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਵੋਇਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਲਾਕ ਜਸਟ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਸਟ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਿਡ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਰੈਨਾ ਜਲਾਲ, ਬਸ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝ ਆਏ ਰੈਨਾ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਲੀ ਦ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਸਿਰਫ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਫਰਦਰ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਗੱਲ? ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਹੈ।
क्यों? द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन, हाले भी ਇਹਦਾ ਕੋਈ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਪਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡਡ ਬਾय ਅਟੈਂਪਟਸ ਆਫ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਅਡਲਟਰੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬੋਲੇ ਅਡਲਟਰੀ ਔਰ ਕਰੂਐਲਿਟੀ 1939 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ 1939। ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਬੈਕ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ it is a personal law, then what is the need to criminalize the act of the parties? Understand? चलो, that's all for today. Rest we'll continue tomorrow. और पढ़ के आइयो प्लीज, Yes. थोड़ा कोई अपना दिमाग लगा के आइयो, है ना।